Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, viewers and spectators. Welcome to Professor Ghulam Hussain Bhatti Chemistry channel. The topic of today's discussion is mass spectrometry. It's extremely important long question according to board paper point of view. The question is, what is mass spectrometer? How it is used to determine the relative atomic mass of an isotope? My dear students, basic concept first year chemistry, chapter number 1. Now, first of all, what is mass spectrometry? Dear students, the instrument which is used to measure exact masses and relative abundance of isotopes in an element is called mass spectrometer, and that technique is called mass spectrometry. Now, my dear students, what we will do over here, mass स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए हम आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं और इनके एग्जैक्ट मैसेज फाइंड आउट करते हैं. जैसा कि फॉर एग्जांपल नियॉन हैज़ 3 आइसोटोप्स और इनके मैसेज 21, 22 एंड 23 होते हैं. मैस स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए हम हर आइसोटोप को सेपरेट करेंगे और इसके मैसेज को कैलकुलेट करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, नाउ देयर इज द शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर? फर्स्ट ऑफ ऑल, द सब्सटेंस whose isotopes are to be separated or identified is first of all volatilized, then ionized. After that, it will be ionized. How it will be ionized? Ionized with the beam of fast moving electrons. We throw here a beam of fast moving electrons on this substance which is volatilized. When we pass beam of fast moving electrons, then what will happen? Then positive ions, that is cations, will be produced over here. When positive ions will be produced, then these positive ions will be separated. These cations will be separated on the basis of mass over charge ratio. On the basis of mass over charge ratio, these cations will be separated, and after that we will plot a graph. We will plot a graph between m over e, mass to charge ratio along x-axis, and relative abundance of isotopes along y-axis. This graph is also called mass spectra. Dear students, we will explain, I will explain this graph at the end of the lecture. Now, my dear students, there are different types of mass spectrometer. The first type is Aston mass spectrometer, and the second type is Dempster's mass spectrometer. My dear student, the first one, Aston's mass spectrometer, it has been designed for identification of elements which are found in gaseous state और इन लिक्विड स्टेट, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो गैसियस स्टेट या लिक्विड स्टेट में होते हैं उनको हम जो है एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए जो है सेपरेट करते हैं. We will separate these on their atomic masses. On the basis of the atomic masses of the elements, we will separate them. My dear students, ये स्पेक्ट्रोमीटर एलिमेंट्स को इनकी एटॉमिक मैस की बेस पर सेपरेट करता है. एस्टन जो है, अब इसके अंदर एक चीज याद रखें, इस मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में एस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसके अंदर वोलाटिलाइजेशन चैम्बर नहीं होता, क्योंकि इसमें आइसोटोप ऑलरेडी लिक्विड और गैसियस स्टेट में होते हैं. इन दिस स्पेक्ट्रोमीटर vaporization chamber is absent. This is the difference between Aston and
Dempster mass spectrometer. Stop. My dear students, the second type of mass spectrometer is Dempster mass spectrometer. It is superior than Aston mass spectrometer. It has been designed for the identification of elements which are found in solid state. Those are isotopes which are found in solid state. Dempster mass spectrometer was first designed to identify the isotopes of an element on the basis of their mass over charge ratio. My dear students, this was designed for the separation of isotopes on the basis of their mass over charge ratio. In this chamber, volatilization chamber is present because this is because these isotopes of the element are present in solid state. This is the difference between Aston mass spectrometer and Dempster mass spectrometer. In Aston mass spectrometer, there is no volatilization chamber, but in Dempster mass spectrometer, volatilization chamber is present, and I have explained the reason as well. My dear students, there will be a short question. What is the difference between Aston and Dempster mass spectrometer? Now, our next topic is construction and working of mass spectrometer. My dear students, there are different compartments, chambers in this mass spectrometer. We will discuss here one by one. The first chamber is ionization. First chamber is vaporization chamber. My dear students, vaporization chamber is the first chamber. This is the diagram of the mass spectrometer. I will explain here with the help of diagram. Now, my dear students, ये जो फर्स्ट चैम्बर है, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये वाला वेपोराइजेशन चैम्बर है. Dear students, in vaporization chamber, the substance whose analysis is required for the separation of isotope is converted into vapors by heating over hot filament. ये देखिए हमारे पास जो है ये हॉट फिलामेंट है, हीटिंग कॉइल है. इसके जरिए जो है क्या करना है, सबसे पहले जो सब्सटेंस है उसको हीट करके वेपर में कन्वर्ट करना है. यानी उसको जो है हमने वेपर्स में कन्वर्ट करना है. द प्रेशर ऑफ द वेपर्स इज रिड्यूस टू 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -7 टार. अब ये जो काम होता है, ये this process will take place at very low pressure, that is 10 की पावर -6 to 10 की पावर -7 tar, and we will heat over here in the presence of hot filament. Dear students, now these vapors, dear students, यहाँ एक कंसेप्ट जो है याद रखें कि आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर जो है, ये जो वेपोराइजेशन चैम्बर जो है, इसके अंदर जो है वेपर्स बनाए जाते हैं. लेकिन अगर हम नियॉन गैस को एंटर करेंगे तो नियॉन गैसियस स्टेट में है, इसके वेपर्स नहीं बनेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट प्लीज़ दैट कि अगर कोई गैस एंटर करेंगे तो उसका वेपोराइजेशन चैम्बर नहीं होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. अगर कोई सॉलिड एंटर करेंगे तो उसको हम जो है वेपर में कन्वर्ट करेंगे. ये जो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया है, उसे सबसे पहले हॉट फिलामेंट, ये जो हीटिंग कॉइल है, इसके ज़रिए जो है हीट किया जाता है. इस चैम्बर में लो प्रेशर 10 की पावर -6 टू 10 की पावर -4 रखा जाता है ताकि एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए और इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए. सॉलिड्स या लिक्विड सब्सटेंसेस को याद रखें, सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस जो है उसको वोलाटिलाइज किया जाता है, लेकिन गैसियस सब्सटेंस को वोलाटिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती. जैसे यहाँ हमने नियॉन अगर एंटर करेंगे, नियॉन गैस एंटर करेंगे तो उसकी नियॉन के 3 आइसोटोप्स होती हैं,
20, 21 एंड 22, और नियॉन गैस के लिए वेपोराइजेशन चैम्बर नहीं होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स टू नोट प्लीज। डियर स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड चैम्बर, these dear students, now the second chamber is ionization chamber. Vapors are now passed into the next chamber, that is ionization chamber. This is the ionization chamber. This is the ionization chamber. Here ionization will take place in this part. In ionization chamber, beam of fast moving electrons are bombarded on the vapors. ये जो वेपर्स आ रहे होते हैं कहाँ से? वेपराइजेशन चैम्बर से। इनके ऊपर जो है बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन जो गन है, इस इलेक्ट्रॉन गन से बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है थ्रो की जाती है। किन के ऊपर? वेपर्स के ऊपर। वेपर्स किसके? आइसोटोप्स के। इनके ऊपर जो है बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब डाली जाती है तो वेपर से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाते हैं, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड। ये देखें, बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स व्हेन फॉल ऑन वेपर्स ऑफ आइसोटोप्स देन इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्टेड फ्रॉम द वेपर्स, और इस तरह क्या होगा? एम पॉजिटिव यानी कैट आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। मेटल आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड, पॉजिटिव आयंस और कैट आयन विल बी प्रोड्यूस्ड। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस चैम्बर। My dear students, as a result, gaseous atoms are ionized and positive ions are produced. These positive ions have different masses and different m over e values due to presence of different isotopes in them. You must remember कि ये जो कैटाइंस प्रोड्यूस हुए हैं इनकी मैस ओवर चार्ज रेशो m ओवर e रेशो ये भी डिफरेंट होगी और इनकी मैसेज भी डिफरेंट होंगी। ये दो चीजें आप याद रखना कि हर एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे, हर आइसोटोप का सेपरेट मैस होगा और उनकी m ओवर e वैल्यूज भी डिफरेंट होंगी। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि इस चैम्बर में वेपर से कैट आयंस बन जाते हैं, इस चैम्बर में आयोनाइजेशन होती है, इसलिए इस चैम्बर को आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इनकी m ओवर e रेशो डिफरेंट होगी, इनकी मैसेज डिफरेंट होंगी, लेकिन इन पर जो चार्ज होगा वो चार्ज जो है वो सेम होगा। ये चीज़ याद रखें, बट दियर चार्ज विल बी सेम। तमाम एक एलिमेंट है उसके डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, उन पर चार्ज सेम होगा। नाउ द नेक्स्ट चैम्बर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड मैस एनालाइजर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो अगला चैम्बर है, ये जो ग्रिड वाला और ये एक्सेलरेटर, ये सारा जो है ये चैम्बर जो है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दीज कैटायंस मूव टुवर्ड द एक्सेलरेटिंग चैम्बर। इसको ये देखिए, ये एक्सेलरेटर लगा हुआ है, ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा है एक्सेलरेटर। इस चैम्बर को एक्सेलरेटिंग चैम्बर भी कहते हैं। दीज कैटायंस आर मूव, ये जो कैटायंस हैं ये मूव करेंगे टुवर्ड द एक्सेलरेटिंग चैम्बर। नाउ दीज कैटायंस आर पास थ्रू द परफोरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो है, ये जो हमारे पास ये देखें, ये परफोरेशन है और इसमें याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है। यहाँ नीचे पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर इस ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इसके अंदर रोल होगा। इस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैम्बर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नीचे पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये जो है हमारे पास नेगेटिव ग्रिड है, ये गाज है, इसको हम आप कह लें जाली है। और इसके अंदर एक और चीज आप याद रखें कि इसके अंदर हाई वोल्टेज
रखा जाता है कितना 500 to 2000 voltage is applied in this chamber. Dear students, in this chamber a high voltage of 500 to 2000 voltage is applied. Now dear students, now these cations will move of the isotopes are passed through the perforations of the electric field gas. ये electric field gas है. Now these cations of the isotopes are passed through the perforations of the electric field gas and they will speed up. या एक्सरेट हो जाएंगे ये जो कैटाइन है. क्यों एक्सरेट होंगे? बिकॉज वी हैव अप्लाइड हाई वोल्टेज 500 to 2000 वोल्टेज ओवर हेयर इन दिस चैम्बर. अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज है. अब ये कैटाइन हाई वोल्टेज की वजह से ये जो गाज है इसके ऊपर अटैच होने के बजाय इसकी परफोरेशन से स्पीड के साथ आगे निकल जाते हैं, स्पीड अप हो जाते हैं, एक्सरेट होकर यहां से गुजरेंगे और आगे जो है, आगे देखें ये जो एक्सरेटिंग चैम्बर में दो स्लिट्स लगी हुई हैं, एक स्लिट ये है, एक स्लिट ये है. नाउ दीज कैटाइन्स आर पास थ्रू द स्लिट्स. आप इनको क्या कहेंगे? ये क्या है? हमारे पास स्लिट्स हैं. इन कैटाइन्स को जो है इस स्लिट्स से जो है वो गुजारेंगे. ये जो कैटाइन्स हैं इनको इस स्लिट्स से गुजारेंगे. अब ये स्लिट्स कैटाइन्स को बीम में कन्वर्ट कर देती हैं. कैटाइन्स आर पास थ्रू द स्लिट्स और बीम ऑफ कैटाइन की क्या बन जाएगी? एक बीम बन जाएगी. और इसके बाद मैं आपको ये कैटाइन की बीम की जो है एग्जांपल दूं कि जैसा कि मोटरसाइकिल के फ्रंट वाले जो मिरर होता है उसके अंदर एक बीमर लगा होता है. बीमर क्या करता है? लाइट को स्ट्रेट थ्रो करता है. कभी मोटरसाइकिल की फ्रंट वाले शीशे की लाइट आगे पीछे मूव हुई है वो स्ट्रेट जाएगी. इसी तरह कार है, कार के आगे दो शीशे लगे होते हैं मिरर से, उनकी लाइट भी स्ट्रेट थ्रो होती है, आगे पीछे मूव नहीं होता, बीमर होता है. बिल्कुल इसी तरह यहाँ में जो है कैटाइन्स के आगे स्लिट लगी होती हैं. स्लिट से जो है वो जो कैटाइन्स की जो है वो एक बीम जो है वो स्ट्रेट आगे जो है नेक्स्ट चैम्बर में मूव करेगी. और इसके बाद ये जो बीम ऑफ कैटाइन नो मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड. ये देखें, ये इधर और इधर जो है, ऊपर और नीचे जो है ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट लगाए जाते हैं. इस चैम्बर को मैग्नेटिक फील्ड चैम्बर कहते हैं. यानी now beam of cations are now moved toward the next chamber that is called magnetic field chamber.